Good morning, student. So, again, welcome in your bio class. And this time, our topic is going on. The topic which is going on, it is immunity, where you have read innate immunity. Innate immunity, this is physical barriers, type of innate immunity, physical barriers, physiological barriers, cellular barriers, and you have read detail also into type of barriers, then cytokinin barriers. After that, you have read acquired immunity. In acquired immunity, you have read two type of lymphocytes, B lymphocytes or cell mediated lymphocytes, B lymphocytes or B cell, T lymphocytes or T cell, and again two acquired immunity responses. This is humoral immunity responses or antibodies mediated immunity, AMI, antibodies mediated immunity, and you have read cell mediated immunity or CMI. Now there is some differences which we will discuss in later in detail, but here we will discuss diagram of antibodies. So see student, this is diagram of or structure of antibodies molecule. Antibodies molecule, basically antibodies are protein. Antibodies क्या है, एक प्रोटीन होते हैं. It is protein molecules, and the molecules which is used as a antibodies is called immunoglobulin. कौन सा टर्म आया, इम्यूनोग्लोबिन. देयर आर 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन. इम्यूनोग्लोबिन कितने टाइप के हैं, 5 टाइप के. फर्स्ट आईजी, IG, first IgA, second IgM, third IgE, fourth IgG, और fifth one IgD. So these all are immunoglobulin. Antibodies is basically bi-shaped structure. कैसा स्ट्रक्चर है ये, bi-shaped structure. Each antibody's molecule consists of 4 polypeptide chain. 1, 2, 3 and 4. पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ मेडअप ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है, वो सब यूनिट मिलके पॉलीपेप्टाइड्स बनाती हैं. पेप्टाइड्स चेन के थ्रू ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं. तो देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन. There are in which 2 chain are long. This one is long chain or heavy chain, and 2 chain are light chain or small chain. Light chain or small chain. Light chain you will denote L, H, or heavy chain you will denote H, C. Clear? Here you have read 5 type of immunoglobulin, but here IG, capital G, this one you will note in your copy also. It is most prevalent antibody and which is in the blood. ये blood में की बहुत हैवी एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है. और IgA ये किस में है, ब्लड में. और एक और IgA, दिस इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क विच इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम. ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो स्मॉल यंग वंस के लिए यूज़ होता है, बेसिकली उसमें एक एंटीबॉडीज़ है IgA. तभी कहते हैं ना, मदर फीस्ट इज़ बेस्ट. दैट्स अ रीज़न, बिकॉज इट गिव्स अ immunity power of child. Clear?
तो IgA इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, इट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉम. ठीक है, इसका नेम क्या है? कोलेस्ट्रॉम. नाउ हियर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, active immunity and passive immunity, where we have discussed what is the difference between active immunity and passive immunity. Active immunity due to it is developed due to contact with pathogens or its antigens. एक्टिव इम्यूनिटी हमें उसी समय डेवलप होगी जब वो पैथोजेंस के कांटेक्ट पे आएगा. ठीक है, मतलब यदि कोरोना वायरस के कांटेक्ट पे कोई वो है तो उसमें ऑलरेडी जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी. क्लियर? पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इट इज़ डेवलप्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड. ठीक है, एंड रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम लोग बीमार होने पर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है. ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स जो वैक्सीनेशंस वगैरह दे रहे हैं ये एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, क्योंकि इसमें किल्ड पैथोजेंस दिए जाते हैं ना, जिसको हम एंटीजेंस कहते हैं. और ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ डेवलप करने में क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं. जब तक एंटीजन नहीं होगा एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होगी. तो दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी. क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड पॉइंट है, इट हैज़ अ फ्यू साइड, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट. एक्टिव इम्यूनिटी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है. पैसिव इम्यूनिटी में इट मे कॉजेज अ रिएक्शन, कभी कभी एंटीबॉडीज़ लेने से बॉडी में जो रिएक्शन हो जाता है. ठीक है, बट एक्टिव इम्यूनिटी में कोई रिएक्शन नहीं है. इट इज़ स्लो. एक्टिव इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होती है. पैसिव इम्यूनिटी फास्ट होती है लेकिन फ्यू डेज के लिए होती है. एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है बट लॉन्ग टाइम के लिए होती है. नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम टू डेवलप इट्स रिस्पॉन्स. भाई जो अभी हम लोगों ने पॉइंट अर्लियर पॉइंट रीड किया है कि ये डेवलप होने पर, इसका रिस्पॉन्स डेवलप होने पर टाइम लगता है. बट पैसिव इम्यूनिटी गिव्स अ फास्ट रिस्पॉन्स. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल्स, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल्स है वैक्सीनेशन फॉर पोलियो. ठीक है, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा, जितने भी वैक्सीनेशंस हो रहे हैं, these are developed active immunity. And passive immunity examples, administrations of tetanus, जैसे टिटेनस का हम एंटीटॉक्सिन्स लेते हैं, एंटीबॉडीज़ कोलेस्ट्रम का जो देते हैं बच्चों को एंटीबॉडीज़, दैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी. सो दिस इज़ एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. आई थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है CMI और ह्यूमोरल इम्यूनी रिस्पॉन्स. ह्यूमोरल इम्यूनी रिस्पॉन्स एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है और इट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड. जो सेकेंड टाइप का जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और दिस इज़ डेवलप बाय T लिम्फोसाइट्स. आप लोगों ने T और B लिम्फोसाइट्स रीड किए हैं ना, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स. जो T लिम्फोसाइट्स है ये हेल्पिंग सेल्स के फॉर्म पे यूज़ हो रहा है. B लिम्फोसाइट्स क्या हो रही हैं? ऐसे प्रोटीन्स डेवलप करते हैं जो एंटीबॉडीज़ के फॉर्म पर यूज़ होते हैं. तो T मतलब हेल्पर सेल. ठीक है ना, तो जो T लिम्फोसाइट्स है वो CMI मेडिएटेड भी है और B लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनी रिस्पॉन्स को भी देता है. ठीक है, वैक्सीनेशन. अब आता है एक और पॉइंट, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. सो वैक्सीनेशन बेसिकली क्या है? वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शंस ऑफ वीकेंड एंड इनएक्टिव पैथोजेंस. वैक्सीनेशन क्या है कि जो वीक और इनएक्टिव पैथोजेंस होते हैं या प्रोटीन होते हैं या किल पार्टिकल्स होते हैं वो इंजेक्शंस के फॉर्म पर दिए जाते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. ठीक है, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन है, मतलब कि उसमें पोलियो के पैथोजेंस हैं या कोई उसके पार्टिकल्स हैं जिनको कि इंजेक्शंस के फॉर्म पर दिया जा रहा है. इम्यूनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वैक्सीन. इसमें क्या है, जो हमको वैक्सीन मिल रही है उसके अगेंस्ट बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. ठीक है, इट इज़ डेवलप टू एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन. ये क्यों डेवलप हो रहे हैं बॉडी में? ये डेवलप होते हैं कि जो बॉडी में
फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस एंटर हो रहे हैं उनको वो न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज। प्राइमरी रिस्पॉन्सेज में कुछ नहीं होगा, मीन्स यदि फर्स्ट टाइम कोई एंटीजेंस बॉडी में अटैक कर रहा है या कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में अटैक कर रहा है तो उस समय जो बॉडी के रिस्पॉन्सेज होंगे दिस इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सेज, और वो बहुत वीक होते हैं, ठीक है। इन प्राइमरी रिस्पॉन्सेज से एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी, और जब सेकेंड टाइम फिर से यदि सेम पैथोजन अटैक कर रहा है या सेम फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में अटैक हो रहा है तो उस समय पर जो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा वो सेकेंड टाइम चूँकि उस पर हुआ है इसलिए उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस कहेंगे। समझ में आया? और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस बहुत कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स और प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन में सेकेंडरी रिस्पॉन्स में पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। थर्ड, वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन आफ्टर अ टाइम गैप। वैक्सीन उस समय पे डेवलप नहीं कर रही कि आज वैक्सीन लगाई है तो आज ही इम्यूनाइजेशन हो गया, बट ये एबिलिटी है इसमें कि ये एंटीबॉडीज़ डेवलप कर चुकी होगी आफ्टर सम टाइम। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी कॉल्ड मेमोरी। अब ऐसा क्यों है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बॉडी बहुत तेज़ी से फाइट करती, क्यों? इट इज़ ड्यू टू वन प्रॉपर्टी विच इज़ प्रेजेंट इन सेल, इट इज़ मेमोरी प्रॉपर्टी। मेमोरी होती है उन सेल्स में जो फर्स्ट टाइम के पैथोजेंस को मेमोरी के फॉर्म पर उसको अपने उनको मेमोरी के फॉर्म पर उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेमोरी ही होती है, और ये मेमोरी पर्टिकुलरली कुछ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। द वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द, जो वैक्सीन जो रहती है वो बी और टी सेल को रिकॉग्नाइज कर लेती है, जिससे कि इंस्टेंट इम्यूनी रिस्पॉन्स डेवलप होता है। इट इज़ क्विक इम्यूनी रिस्पॉन्स इज़ नीडेड टू अ टिटनस इन्फेक्शन। जैसे टिटनस इन्फेक्शन हुआ, कहीं पर कोई आयरन रॉड या आयरन का से कोई इंजर्ड हुआ कोई पार्ट छोटा सा, तो वहाँ पे टिटबैक के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ना। समझ में आया? तो ये क्विक इम्यूनी रिस्पॉन्स है, और क्विक इम्यूनी रिस्पॉन्स क्या है? पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आया? फास्ट लास्टिंग, फास्ट होती है ये क्विक इम्यूनी रिस्पॉन्स। इट इज़ क्योंकि आप टिटनस के लिए, टिटनस के इन्फेक्शंस के लिए एक क्विक इम्यूनिटी की ही रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर यदि लेट इम्यूनिटी होगी तो क्या होगा, वो तब तक पूरे में फैल चुका होगा, ठीक है। इट्स परफॉर्म एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स इट इंजेक्टेड इनटू अ पेशेंट। तुरंत ही उसमें एंटीटॉक्सिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और ये इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी में है। बाय recombinant DNA technology, vaccines have been produced on large scale hepatitis B। अभी आप लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स के थ्रू ऐसे इंजेक्शंस डेवलप हुए हैं जस्ट लाइक हेपेटाइटिस बी, जो बहुत सीवियर डिजीज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब नए तरीके के पुराने डीएनए में कुछ पार्ट अटैच करके और या कुछ पार्ट डिलीट करके नए डीएनए फॉर्म करना, इट इज़ कॉल्ड एज न्यू डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और बेसिकली वैक्सीन जो हेपेटाइटिस बी की है वो किससे डेवलप होती है? वो डेवलप होती है ईस्ट से। इससे डेवलप हो रही है ईस्ट से। इसका मेंबर है ईस्ट फंगी का, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर तुम लोग इसको एक बार बुक में रीड करना, ये दिस वन इट इज़ गिवन देयर ऑल्सो, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, फिर वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। एक और टर्म आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय पर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय पर क्या होता है, बॉडी डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे इंजेक्शंस देते हैं जो कि बॉडी जो
बॉडी के उसको कुछ ऐसे बॉडी में ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। उनकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए डॉक्टर्स ऐसे कुछ इंजेक्शंस देते हैं जो कि इस नेचर को ख़त्म कर देते हैं, सेल्फ और सेल्फ सेल और फॉरनर सेल को डिफ्रेंशिएट करने में उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेस होता है। तो एक और पॉइंट है, आप रीड करोगे तो आपको ये पॉइंट भी मिल जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। अब आता है नेक्स्ट टर्म, एलर्जी। Allergy basically it is aggregated or hypersensitivity reactions of immune system. Hypersensitivity, it is we can use in presence of allergy the aggregated or hypersensitivity reactions. सेंसिटिविटी, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी कुछ हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम कुछ छोटे से एंटीजेंस पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी। और हाइपर सेंसिटिविटी का ही रीज़न है एलर्जी, क्लियर। द सब्सटेंस इज the substance or agent which produce an immune response to an individuals are called allergens. allergens किसको कह रहे हैं? जो एलर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एलर्जी, जो प्रोड्यूस करने वाले को एलर्जेंस। द सब्सटेंस टू विच सच अ immune response is produced are called allergens. The antibodies produced of this type is AGE. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सी इम्यूनोग्लोबिन कहाँ कहाँ पर यूज़ हैं, ठीक है। अब आपको 3 तरीके के इम्यूनोग्लोबिन के हम डिफरेंट पोजीशन आपको क्लियर कर चुके हैं। नाउ IgE स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विच इज़ प्रोड्यूस बाय एंटीबॉडीज़ ड्यूरिंग एलर्जी, ठीक है। ये कौन सा है? IgE। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जी आर माइट्स इन डस्ट, पॉलन्स, किसी को पॉलन से होती है, एनिमल डेंडर्स। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स क्या हैं? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, दीज आर द some symptoms of allergy. Allergy is due to release of chemical. ये एलर्जी के किसके कारण हो रही है? कुछ केमिकल्स, दिस इज हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, ठीक है। किसके थ्रू हो रहा है? मास्ट सेल। मास्ट सेल कहाँ पर हैं? ब्लड पर। फॉर डिटर्मिनेशंस इट्स कॉजेज आ एलर्जी, अल्टीमेटली एलर्जी हो रही है। तो आप एलर्जी क्या है, एलर्जेंस क्या है, किस टाइप का इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है यहाँ पर, और कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, हिस्टामाइन एंड सेरोटिन। तो ये क्या होता है? फॉर डिटर्मिनेशंस कॉजेज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज टू इंजेक्टेड विद स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडी। तो इनको रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इसलिए कुछ एलर्जेंस पेशेंट को दिए जाते हैं। एलर्जी का टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है। किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, डॉक्टर्स को अलग अलग एलर्जेंस देते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है। फिर वो रिस्पॉन्स से वो पेशेंट की एलर्जी को फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो ये फाइंड आउट करना होता है, इट इज़ इन्वेस्टिगेशंस पॉइंट, ये एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ठीक है। द यूज़ ऑफ ड्रग्स, लाइक इसमें जो ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं वो हिस्टामाइन तो केमिकल है, एंटी हिस्टामाइन कौन सा है? वो एंटी हिस्टामाइन। इसमें एड्रेलिन और
स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एड्रेनल एंड द स्टेरॉइड्स इट्स क्विकली रिस्पॉन्स द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, तुरंत जो है एंटीहिस्टामाइन एलर्जी को तुरंत क्या करता है, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर देता है। मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जी एंड एस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट। जो एस्थमा है, इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। इट्स कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। इसीलिए हमारे पुराने टाइम पर एक एनवायरनमेंट को जो प्रोटेक्शंस का जो एक फार्मूला मिला है, उसके पीछे यही रीज़न है। यदि पॉल्यूशन होगा, एलर्जेंस डेवलप होंगे, एलर्जी देंगे, बहुत सारे नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, लाइफ एग्जिस्टेंस पुअर हो जाएगा। सो आई थिंक स्टूडेंट, टुडे वी हैव फिनिश एलर्जेंस। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑटो इम्यूनिटी. So student, this chapter is very important. Read very carefully. Thank you student. Have a nice day.